Praise the Lord. Hallelujah. Good evening, brothers and sisters in Christ. We have come this evening to praise and worship His name. We are glad this evening, Father, that we have come and joined together with His greatness and His love. Thank you, Jesus. I feel the presence is over this evening in each place, God. So let's rejoice His name by worshiping and singing His songs. Thank you, Jesus. Jesus. सबसे महान तेरा प्यार है अपार, करूं कैसे बयां, राजाओं का राजा तू है सबसे महान, है पाक तू पवित्र है, तेरे जैसा कोई नहीं, है पाक तू पवित्र है, तेरे जैसा कोई नहीं, हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सर्व सृष्टि है तू सेनाओं का प्रभु, हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सर्व सृष्टि है मुश्किल हो गया सा, तू जो हो गए मेरे साथ, आंधियों पर मैं चलूं, तू जो थामे मेरा हाथ, हर मुश्किल हो गया सा, तू जो हो गए मेरे साथ, है पाक तू, everybody sing with me, पवित्र है, तेरे जैसा कोई नहीं, पवित्र है, तेरे जैसा
सदा तेरे जैसा कोई नहीं। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सर्वश्रेष्ठ है तू सेनाओं का प्रभु। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सर्वश्रेष्ठ है तू सेनाओं का प्रभु। की तलाश में था, वो प्यार कहीं ना मिला। सारी दुनिया में कोई तुमसा प्यार करने वाला, तेरा प्यार है महान यीशु, यीशु तेरा प्यार है महान यीशु। मेरा दिल का राजा है तू यीशु, मेरा दिल का राजा है तू। तुझसे बेबस और मजबूर, पर तूने मेरा नाम लेके बुलाया अपनी हुजूर, और दिया जीवन भरपूर। ओ तेरा प्यार है महान यीशु, यीशु तेरा प्यार है महान
the Lord. Amen. Hallelujah. Now this time is so wonderful, Father. We present to yourself that God, you are like you do forever for us in our life. We like you so much that you are there with us this evening in our lives. Brothers and sisters in Christ, we want to sing a song which always will be in our heart forever. Where are you watching me? Dance and sing unto the Lord. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Our God praise. Our God saves. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Our God praises. Highest praises. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. We give thanks. We give thanks. I'm grateful for who you are and all you've done. Sing with me. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul, cry hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Our God says, Our God saves. oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Highest praises. Highest praises. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. We give thanks. We give thanks. We sing one more time. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Our God saves. Our God saves. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Highest praises. Highest praises. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. We give We thanks. give thanks. Amen. Jesus Christ, we praise His name, God. Oh, we praise His name, Jesus. तू कभी ना छोड़ेगा हमें, न त्यागेगा कभी। सचमुच तू है महान। Yes, Lord, we praise His name, Father. We praise His name, God. Hallelujah. So shall we stand where you're watching me online this evening? So I want the brothers and sisters to stand on your feet and sing this song with me. And we'll be wonderful, grateful. We'll be anointing in your house, Father, this evening, Father. I pray to you. It'll be a lovely song this evening for you. हर सवाल का
से हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू, एक बार और तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू। हर समय हर घड़ी साथ न छोड़े वो कभी, बात छोटी हो या बड़ी, देगा यीशु तुझे आजादी। हर समय हर घड़ी साथ न छोड़े वो कभी, बात छोटी हो या बड़ी, देगा यीशु तुझे आजादी। तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू। उल्ले हो, उल्ले हो, उल्ले हो, ele ulle ho, ile hilahi, ile hilahi, ile hilahi, he he ile hilahi, ile hilahi, he he ile hilahi, ile hilahi, he he ile hilahi। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु काफी है। कुछ नहीं चाहिए, मुझे यीशु काफी है। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु काफी है। कुछ नहीं चाहिए, मुझे यीशु काफी है। तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा यीशु तू ही तू। Praising God, thank you, hallelujah, amen, Jesus Christ. I pray to you, Father. It's a wonderful time. Before we come in the Word of God, you just close our eyes and ask God, the Father, you're so wonderful in our lives, God. Heavenly Father, we pray this evening, each one will be blessed. Before I call Brother Gaurav, Pastor Gaurav, to share his word of God, before that, Father, I pray everybody should believe and trust that God, His mighty power will be moving on this earth and every houses, Father. I pray to you, Jesus Christ. I pray to you, Father. I pray to you, Lord. I pray to you, Lord. Today is the Father's Day, God. I believe, Father, you're there with us. Papa, 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 Pita, tu mere Papa.
प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। Then sings my soul, my Savior, God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior, God to thee. How great thou art, how great thou art. Amen, Jesus. Thank you, Lord. हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। और आज इस वक्त हम प्रभु की उपस्थिति में आप सबों को स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने मौका दिया है कि आज हम और आप मिलकर उसकी वचन को गाए, उसकी उपस्थिति में रहे। परमेश्वर ने कुछ विशेष वचन आज हमारे लिए दिया है। उस वचन को हम भागीदारी बने, क्योंकि ये वचन है जो जीवित है, और ये वचन है जो हमारे आत्मा का भोजन है, जो आत्मा को ताकत देता है। और आज परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य से, एक विशेष मकसद से आपको और हमको इस चैनल के माध्यम से एकत्रित किया है, ताकि हम उसकी आशीष में, उसकी उपस्थिति में, उसके अभिषेक में भागीदारी लें। हम जानते इस समय ये दुनिया एक ऐसी स्थिति में गुजर रही है, ये दुनिया मौत को मंजर को देख चुकी है। लाखों के तादाद में लोग बीमार पड़े, लाखों के तादाद में लोग मर रहे हैं। दुनिया को बंद करना पड़ा, देशों को बंद करना पड़ा, घरों को बंद करना पड़ा, लोग गृह में बंदी हो गए। कई लोग सोचते हैं कि इस वक्त मैं क्या करूं, मैं अकेला हूं, मैं अकेला इससे जूझ रहा हूं। कई लोग की फैमिली में कोई नहीं है, उनके बच्चे नहीं हैं, कुछ लोगों के फैमिली में माता पिता नहीं है। उनको कौन दिशा निर्देश दे, कौन उसको ढांढस दे, कौन उनको सांत्वना दे, और वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। और परमेश्वर का वचन आज कहता है कि मेरे बच्चों, तुम अकेला नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो। यू आर नॉट अलोन, आई एम विद यू। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं सर्वदा तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ रहूंगा। और इस वक्त मैंने तुम्हें घेरे रखा है। तुम मेरे आंखों से ओझल नहीं हो सकते, तुम गायब नहीं हो सकते, तुम निरुद्देश नहीं हो सकते, तुम छुप नहीं सकते, कोई तुम्हें मुझसे छुपा नहीं सकता। लेकिन तुम मेरे आंखों के सामने हो, तुम मेरे संतान हो, और मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता हूं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, जितने लोग इसे देख रहे हैं या देखने वाले हैं, आज परमेश्वर की आत्मा कह रही है कि जान लेना आप अकेले नहीं हैं, वो आपके साथ है, वो सर्वदा आपके साथ था। जब उसने इस इंसान को बनाया, तब से लेकर आज तक उसने इंसान को छोड़ा नहीं, वो हमारे साथ है। मैं चाहूंगा एक वचन को हम लोग जान लें। इस वचन को शायद हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं समझता हूं आज के दिन में सब लोगों को, सिर्फ क्रिश्चियन लोगों को नहीं, जितने लोग सुन रहे हैं, अविश्वासी लोग सुन रहे हैं, जितने लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, उनको जानना जरूरी है कि प्रभु आपको अकेला नहीं छोड़ा है, वो आपके साथ है। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे जो लिखा है भजन संहिता 139 अध्याय में 1 से लेकर 7 पद तक परमेश्वर के वचन को पढ़ा जाएगा, और हम लोग ध्यान से सुनेंगे उस वचन को जब पढ़ा जाता है। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू
बैठना जानता है और मेरे विचारों का दूर ही से समझ लेता है। मैं चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, व तेरे सामने से किधर भागूं। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा से हम कहां भाग सकते हैं? प्रभु कहता है कि उसने हमें आगे और पीछे घेरे रखा है, उसने अपना हाथ हम पर बनाए रखा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं है। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर हम लोग इब्रानी को पुस्तक देखें, वहां पर 13 अध्याय 5 पद में लिखा गया है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। कोरिन्थियों की पुस्तक अगर हम देखें, दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय 8 से 9 पद, तो वहां पर लिखा है, चाहे कुछ भी हो जाए, पौलुस अपना कोरिन्थियों की मंडली को अपना उदाहरण देता है, अपना साक्ष्य को बताता है। मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया, हम सबको क्या नहीं किया गया, कितना कुछ हो गए, लेकिन परमेश्वर ने हमें कभी नहीं छोड़ा। परमेश्वर हमारे साथ है। दाऊद भजन संगीता 37 में अध्याय का 25 पद में कहता है कि मैंने अपने जीवन में, मैं पहले युवा था और आज मैं वृद्ध हो गया हूं, लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा कि परमेश्वर के धर्मी जन को भुलाया गया हो। मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा कि परमेश्वर के बच्चे रोटी के लिए भीख मांग रहे हैं। हालेलुया। क्या ही सुहावना है ये वचन कि परमेश्वर हमारा साथ है, हमेशा घिरे हुए है, हमेशा हमारे आसपास है। और क्यों वो हमारे साथ है? इसका कारण क्या है? इस प्रेम का, इस साथ का कारण क्या है? अगर हम जानना चाहें तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा मेरे मित्रों, समय कम है, कुछ बिंदुओं को आपके साथ रहना चाहूंगा क्योंकि मैंने इस बात को झेला है। पिछले दिनों जब बीते वर्ष मैं कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो गया था और जब इसे इन्फॉर्म हुआ, जब रिपोर्ट आई तो मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना गया। इन दिनों हम जानते हैं कई लोगों में हो रहा है, देश में भरा पड़ा है, उस समय ऐसा नहीं था। पुलिस वाले आ गए, 2 वैन आ गई, एक एम्बुलेंस आ गया और मुझे उठाकर लेके गया और पुलिस वाले घेरे थे ताकि वो रोगी भाग ना जाए। और जब हमें वहां पर उठाकर लेके गया, लोग सब दूर से भागने लगे ताकि उन्हें इन्फेक्शन ना हो जाए और मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। और बाद में जब मैं सुनता हूं अपने घरों की कहानी, ऐसा हुआ कि हमारे घर लॉकडाउन को लॉक कर दिए गए, जितने हमारे रिश्तेदार थे, और उनको कोई खाने के लिए, कोई वस्तु लाने के लिए घर से आना जाना करना मना हो गया। लोग उनके आसपास नहीं जाते थे, लॉक कर दिए गए। वो लोग रोते थे, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मेरी बीवी रोती रही सारी रात कि कैसे वो लोग को पालेगी, कैसे करके खाना आएगा, कैसे करके जरूरत की चीजें आएगी। मेरी माँ किसी और दूसरे घर में थी, वो अकेली थी, उस घर को भी लोग डर से देखते रहे, एक अलग निगाह से देखते रहे कि इस घर को हमें निगलेक्ट करना है, इस घर से दूर से जाना है, और उन्हें बंद कर दिया गया। और सबको चिंता होने लगा, जो हमारे कलीसिया के लोग हैं, जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, पास्टर्स हैं, कि इनके घर में कैसे वस्तुएं पहुंचेंगी। लेकिन मैं बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों, जब मैं वापस आया तो मेरी मम्मी आंसू के साथ गवाही देती रही। जब घर का रसद खत्म ही होने वाला था तो किसी एक विश्वासी भाई ने, कोई एक हिंदू पड़ोसी ने, एक मुस्लिम ऑटो रिक्शा वाले जो मुझे जानता है, उसने कई बार मेरे घर में खाने और जरूरत की चीजें पहुंचा दिया। जब मेरी माँ उनको पैसा देने चाहे, उन्होंने कहा जरूरत नहीं है।
ठीक ऐसा ही हुआ जहां मेरे बीवी और मेरे बच्चे थे, वहां पर भी प्रतिदिन उनके घर की हर एक जरूरतें पहुंचती गई और किसी ने पैसे को नहीं लिया और आज तक नहीं मांगा। और जब मैं वापस आके पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा प्रभु ने निःशुल्क मुफ्त में हर एक चीज को दिया। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो चीजें पहुंचती रही, जब भी जरूरत था वो लोग सोचते रहे और उसी वक्त परमेश्वर पहुंचाता रहा। जैसे एलिया जब किरियत के नाले के पास उस गुफा में था और उसके पास खाना और पानी पहुंच जाता रहा, उसी रीति से परमेश्वर अपने भक्तों को उनकी जरूरतों की चीजें पहुंचाते रहे। जब वो सोचते रहे कि वो अकेले हैं, परमेश्वर कहता रहा तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं जब हॉस्पिटल में था, एक दिन बाद मुझे आईसीयू में डाल दिया गया और मैं जब आसपास देखने लगा, बहुत ही बुजुर्ग लोग क्रिटिकल हालत में, कई लोग तो वेंटिलेटर्स में थे, मेरे दोनों बाजू में 2 लोग वेंटिलेटर्स में थे। मुझे भी बहुत सारे ऑक्सीजन सिलाइंस और चीज वगैरह वगैरह से, कई मेडिकल इक्विपमेंट से दे दिया गया बॉडी में। और मैं सोचता रहा क्या होगा, और मैं प्रभु से बोलता रहा कि अगर मैं यहाँ पर मर गया तो प्रभु मैं अपने बच्चों को देख नहीं पाऊंगा, अपने पति को देख नहीं पाऊंगा, अपने माँ को देख नहीं पाऊंगा, अपने मित्रों अपने कलीसिया के लोगों को देख नहीं पाऊंगा। प्रभु अगर मुझे कुछ इस हॉस्पिटल में हो जाता है तो मेरे बॉडी भी वो लोग देख नहीं पाएंगे। और पहली या दूसरी रात मैं सिर्फ रोता रहा और डॉक्टर आके मुझे डांटते रहे, जवान लड़के हो क्यों रो रहे हो, क्यों डर रहे हो। और जब मैं हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, ना मेरे पास मोबाइल था, ना मेरे पास बाइबल थी, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और दूसरे दिन रात को जब नर्स मुझे खाना देने के लिए आई और खाने में तकलीफ हो रही थी और नर्स हमें डांट कर खाना खिलाती थी, तब एक नर्स देखी, मैं खाना खाने से पहले दुआ कर रहा था, खाने के लिए धन्यवाद दे रहा था। तब वो नर्स मुझे बोली, आप क्या क्रिश्चियन हो, क्या आप प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हो? मैंने कहा हाँ मैं हूं। उन्होंने कहा मैं भी क्रिश्चियन हूं। उसने कहा आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं प्रभु का सेवा करता हूं, मैं पास्टर हूं। उस नर्स से कहा पास्टर जी आप जरूर दुआ करते होंगे। मैंने कहा हाँ मैं दुआ करता हूं। उन्होंने कहा आप जब खाना खा लेंगे आप हमारे लिए भी दुआ करो। हम यहाँ पर 5 नर्स हैं जो क्रिश्चियन हैं और हमें बड़ा डर लगता है पास्टर जी, क्योंकि हम इस कोरोना हॉस्पिटल में दिन रात काम करते हैं। और मेरा खाना खत्म होने के बाद करीब आधे घंटे के बाद वो 5 सिस्टर्स आई और हमने एक साथ प्रार्थना किया। और जब आजू बाजू के कई लोग हमें देखते रहे, वो लोग सोचते रहे लोग क्या करता रहा। हम लोग बड़ी आहिस्ते आवाज में, धीमी आवाज में प्रार्थना कर रहे थे। तब मैंने उस सिस्टर से कहा कि सिस्टर अगर हो सके तो मुझे एक बाइबल दीजिए, मैं बाइबल को पढ़ना चाहता हूँ। दूसरे दिन एक सिस्टर जब ड्यूटी में आई, हमारे लिए एक नया नियम को लेके आई और मैं वही बाइबल को पढ़ता रहा। और तब मैं उस बाइबल को पढ़ता रहा और जब मैं उस बाइबल को पढ़ता रहा तो परमेश्वर का वचन मुझसे बातचीत करने लगी। और परमेश्वर का वचन यूहन्ना 14 अध्याय 18 पद में कहता है कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु अपने चेलों से कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और ये बात मेरे दिल में बैठ गई और मैं कहने लगा प्रभु मैं भी आपका चेला हूं, मैं भी आप ही को प्रभु मानता हूं, मैं भी आप ही का वचन को पढ़ता हूं। परमेश्वर प्रभु यीशु मैं आपका सेवा भी करता हूं, क्या तू मुझे अनाथ छोड़ देगा? और आंसू के बूंदे जब मेरे आंखों से गिर रहे थे, एक पवित्र आत्मा का आवेश, उनका आगोश मेरे आसपास होने लगा और एक शांति सी मेरे दिल में बैठ गई और वो कहने लगा जैसे मैं अपनी आत्मा से सुन रहा हूं, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे पास बैठा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मेरे को बाइबल पढ़ते देख एक कोने में एक वृद्ध
था, 65 साल का बुजुर्ग था। वो आए, एक दिन आए और कहने लगे मैंने यीशु के बारे में सुना है, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं पर मैंने सुना है अगर यीशु के पास प्रार्थना करो तो वो चंगा हो सकता है। और मैंने कहा ठीक है अंकल, आपने सही सुना है, मैं वही यीशु को प्रार्थना करता हूँ। तो उसने कहा बेटा तू मेरे लिए दुआ करेगा। आज मेरा टेस्ट लिया गया, स्वाब टेस्ट लिया गया कि वो नेगेटिव आ जाए, और मैं उनके लिए प्रार्थना किया, हम दोनों साथ प्रार्थना किया और लगातार 2 दिन वो हमारे पास आता गया सुबह शाम, और मैं उस बुजुर्ग के लिए प्रार्थना करता गया। और तीसरे दिन सुबह वो बुजुर्ग मुझसे भी पहले उठ गया था और मेरे लिए इंतजार कर रहा था, और आकर वो मेरे पेट पे कहता है बेटा तेरा प्रभु महान है, मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आया है, आज सुबह मैं घर जाने वाला हूँ। जोर से बोलेंगे हालेलुया। और वो वृद्ध उस रिपोर्ट लेके चला गया। वो दुर्गापुर का रहने वाला था और मैंने उसे कहा अंकल ये जो मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ आप इसे लेके चल जाइए, इसे जरूर पढ़ना। और वो बाइबल मैंने उन्हें दे दी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महान है, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपका करीब है, वो हमेशा आपका करीब है। मैं चाहता हूं एक वचन को आप लोग ध्यान से सुने। व्यवस्था विवरण की किताब 4 अध्याय 7 पद में कुछ लिखा है, हम ध्यान से सुने। देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसे हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। कितना सुहानी बात है, कितनी अच्छी बात है, क्या पावरफुल बात है, क्या सामर्थ्य बात है। हमें एक ऐसा परमेश्वर मिला है कि वो हमेशा हरदम हमारे साथ है। जब भी हम उन्हें पुकारते हैं, जब भी हम उन्हें पुकारते वो हमारे साथ है। ये उस जाति के लिए नहीं है, ये उन सभी लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु को प्रभु मानते हैं, जो भी उसे पुकारता है। और इसीलिए लिखा गया है मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, और ढूंढो पुकारो तो तुम मुझे ढूंढ लोगे, तुम मुझे पालोगे। भजन संगीता 145 अध्याय 18 पद को भी हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे क्या लिखा है। जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वो निकट रहता है। वो निकट रहता है। मेरा पहला बिंदु है पर आप अकेले इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर आपके निकट है। परमेश्वर आपके पास है मेरे मित्रों। दुनिया बंद हो जाए, देश बंद हो जाए, हॉस्पिटल्स बंद हो जाए, अदालतें बंद हो जाए, आपकी अपील सुनने वाली हर एक जगह बंद हो जाए, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। आप जंगल से जा रहे हो, समुद्र से जा रहे हो, दुख से जा रहे हो, तकलीफ से जा रहे हो, लेकिन मेरे मित्र आप अकेले नहीं हो, वो आपके करीब है। आप कहोगे मुझे वो दिखाई तो नहीं देता, मुझे वो अनुभव तो नहीं होता है। एक बार पुकार के तो देखो, वो आपके करीब है। प्रभु की दासी ने अभी पढ़ा भजन संगीता 145 का 18 कि वो परमेश्वर आपके करीब है, सिर्फ आपकी पुकारने की देरी है। कैसे पुकारोगे? परमेश्वर का वचन कहता है सच्चाई से पुकारो। ड्यूटी के लिए नहीं, क्रिश्चियन है, हर रविवार को चर्च जाना है, खाना खाने के लिए जस्ट प्रार्थना करना है, दिखावा करना है, ऐसे नहीं। जब आत्मा से पुकारोगे, सच्चाई से पुकारोगे, वो आपके निकट है। हालेलुया, वो आपके पास है, वो आपको गोद में बिठाए हुए है, उसका हाथ आपके सर पर है। जब आप उसे पुकारते हो, सच्चाई से पुकारते हो। यूहन्ना 4:23 और 24 पद कहता है कि समय आ गया है कि हम उसको पुकारे, हम उसकी आराधना करें, हम उसकी बढ़ाई करें, तो आत्मा और सच्चाई से करें। आप अकेले इसलिए नहीं हो मेरे दोस्तों क्योंकि वो आपको करीब है। बस एक बार पुकारो, सच्चाई से पुकारो, वो आपके करीब है। क्योंकि अगर आपका हृदय टूटा हुआ है, जब भी आपका हृदय टूटा हुआ रहता है, आप सोचते हो मैं अकेला हूँ, लोग मुझे सब छोड़ चुके हैं, मुझे नकार चुके हैं, मेरे ठट्टा उड़ाते हैं, मेरे नाश करने के लिए, मेरे क्षति करने के लिए लोग हैं, कहीं पर कोई रास्ता नहीं है, आप हताश है, निराश है, दिल टूट चुका है, उस पर देखना, उसे पुकार, वो आपके करीब है। भजन संगीता 34 अध्याय 18 पद पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है
यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। आप जब टूटे हो, किसी और की आशा मत करो। आशा तो जब हम करते, कोई दूसरा हमें संभालेगा, मदद करेगा, दिलासा देगा, प्रेम करेगा, सुझाव देगा। कई बार वो हमें नकार देते हैं, लेकिन एक ऐसा भी है जो आपको कभी नहीं नकारेगा, कभी नहीं त्यागेगा। क्योंकि जब भी आपका हृदय टूटता है, आप दुख में होते हो, जैसा पिता अपने बच्चों के साथ रहते हैं उसके तकलीफ में, उससे भी कहीं ज्यादा आप जब टूटे हुए हैं, परमेश्वर आपके साथ है। आप अकेले नहीं हो मेरे दोस्तों। जब आप टूटे हुए हो, आप अकेले नहीं है, क्योंकि वो आपके करीब है। बस सच्चाई से पुकार के देखो, वो आपके बचाने के लिए, आपको सेव करने के लिए आपके साथ है। फिर से एक बार उस भजन संहिता 34 का 18 पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है कि वो टूटे हुए हृदय लोगों के साथ तो है ही, उसके साथ साथ ये भी लिखा है, और पिसे हुओं का उद्धार करता है। और वो पिसे हुए का उद्धार करता है, बचाता है। सिर्फ वो साथ ही नहीं रहता, वो सिर्फ मुंह से बोलने वाला, अरे भाई मैं तो तेरे साथ हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है मैं साथ हूँ। कई दोस्त ऐसे बोलते होंगे, कई रिश्तेदार ऐसे बोलते होंगे, जब आप मुसीबत में हैं, जब आपके घर में कोई समस्या है, अरे मैं तो साथ हूँ, लेकिन करने के बारे में कोई काम नहीं आता होगा। लेकिन मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है, और वो आपका परमेश्वर भी ऐसा नहीं है। वो कहता है मैं तो तेरे साथ हूँ, और ऐसा साथ हूँ तुझे बचा दूंगा, और ऐसा साथ हूँ तुझे छुड़ा दूंगा, तुझे कोई हानि नहीं होगी। भजन संहिता 46 का 1 पद कहता है कि जब हम मुसीबत होता है, तब हमारे मदद के लिए सबसे आसानी से मिलने वाला मददगार वो होता है। हम पढ़ेंगे उस वचन को, भजन संहिता 46 का 1 पद में, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। कोर्ट कचेरी करना नहीं पड़ेगा भाइयों, एप्लीकेशंस लिखना नहीं पड़ेगा, लाइन में खड़ा नहीं होने पड़ेगा जो अब मेरी बारी आएगी। इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि नेताजी या वो ऑफिसर कब आएगा, बाहर गया हुआ है, वैकेशन में है। वचन कहता है संकट में अति सहज से मिलने वाला मददगार, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका प्रेमी प्रभु यीशु मसीह हमेशा आपके साथ है। आप अकेले नहीं। अगर आज आपकी बात, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है आपके परिवार में, लोग आपको नकार चुके, आपके परिवार को नकार चुके, प्रभु का वचन कहता है आप अकेले नहीं हो, परमेश्वर आपके साथ है। बस मेरे मित्रों, आप कोई भी हो, कोई भी जाति का, कोई भी भाषा का, कोई भी रंग का, कोई भी जुबान का, बस उसे पुकारो, सच्चाई से पुकारो। अगर आपका हृदय टूटा हुआ है, वो आपके पास है, आप अकेले नहीं हो। ये प्रभु यीशु मसीह पूरे जगत का परमेश्वर है, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। आज वक्त है मेरे मित्रों, जितनों ने आज तक उन्हें नहीं पुकारा, हालांकि वो आपके साथ ही थे, लेकिन उन्हें नहीं पुकारा, आज पुकारिए, आज पुकारिए, वो आपके साथ है। आज पुकारिए, वो आपको मदद देने के लिए तैयार है। आज पुकारिए कि ये प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा प्रेमी है, आज से मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ। और जब आप ऐसा कहते हैं, वो आपको छुड़ा लेगा। कितनी भी बड़ी पहाड़ क्यों ना हो, वो पहाड़ आपके सामने से हट जाएगी। मेरे मित्रों, आप अकेले नहीं हो, और आप अकेले इसलिए नहीं हो कि वो आपके पास है, आप अकेले इसलिए भी नहीं हो कि वो आपको जानता है, वो आपको पहचानता है, वो आपके नाम को जानता है, आपकी चेहरा उसके हथेली में आंका हुआ है, उसका चित्र बनाया गया हुआ है।